خواتین و حضرات، سیاسی احوال کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں تحصیل غازی میں۔ یہ خیبر پختونخوا صوبہ کا صوبائی اسمبلی سے اگر دیکھیں تو پی کے 48 بنتا ہے، اور اگر اس کو نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے حساب سے دیکھیں تو یہ بنتا ہے جی NA 18۔ صوبائی اسمبلی میں پی کے 48 اور قومی اسمبلی میں NA 18۔ خواتین و حضرات، اس وقت میں تحصیل غازی میں موجود ہوں جو کہ مین ہب ہے پی کے 48 کا بھی اور NA 18 کا بھی، جہاں پہ آپ ہری پور سے لے کر آپ غازی تک جو ہے اس سارے ایریے کو دیکھتے ہیں، اور یہاں پر تحصیل غازی میں اس وقت جو رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ تقریباً 4 لاکھ ہے، اور شرح خواندگی جو ہے اس علاقے میں تحصیل غازی میں 85% ہے۔ آج میں یہاں پر سیاسی احوال آپ لوگوں کے لیے پیش کروں گا، اور اس میں کوشش یہ ہوگی کہ اس علاقے کے تحصیل غازی کے اسپیسیفک کیا کیا مسائل ہیں۔ خواتین و حضرات، صوبہ خیبر پختونخوا کا یہ حلقہ پی کے 48 اور جس کی تحصیل غازی ہے بڑا دلچسپی کا حامل ہے جی۔ اس میں ٹوٹل اس دفعہ جو امیدوار ہیں وہ 24 کے قریب ہیں جو کہ حصہ لے رہے ہیں، اور رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ویسے تو 2 لاکھ اور 95,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ میں یہاں پہ رہتا ہوں تو میرا اپنا مشاہدہ یہی ہے، اسی لیے میں نے 4 لاکھ کے قریب کہا تھا۔ تو خواتین و حضرات، اس دفعہ جو ہے 24 امیدواروں کے بیچ میں سے جو 5 کینڈیڈیٹس ہیں، مقابلہ ان کے بیچ میں بڑا سخت چل رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ علاقہ جو ہے پی کے 48 2 جگہوں پہ 2 شخصیات کے بیچ میں ہمیشہ چلتا رہا۔ ایک پیر صابر شاہ صاحب جو کہ آج کل سینیٹر ہیں، لیکن وہ اس علاقے سے منتخب ہوئے صوبائی اسمبلی کے ممبر، اور ایک دفعہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت کا صوبہ سرحد تھا، وہ رہے۔ اور جہازوں والے گروپ میں فیصل زمان ہیں جو 2 سے 3 مرتبہ تو وہ بھی رہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی اور شخصیت جو ہے وہ سامنے آئی نہیں، حالانکہ پچھلی دفعہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے امیدواروں نے، جماعت اسلامی کی امیدواروں نے، پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اس جگہ سے الیکشن لڑا تھا، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دفعہ جو مقابلہ ہے 5 کینڈیڈیٹس ہیں جن کے بیچ میں بڑا شدید ترین مقابلہ ہے۔ وہ 5 کینڈیڈیٹ جو ہیں ان میں ٹاپ پر جو ہیں وہ پیر صابر شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں سید حامد شاہ صاحب، اور ان کے بعد جو ہے وہ عدیل صاحب ہیں جو کہ ینگ اور انرجیٹک قسم کے امیدوار ہیں، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ حامد شاہ صاحب کا نون لیگ سے ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب ہیں جماعت اسلامی سے، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، وہ جماعت اسلامی سے کھڑے ہو رہے ہیں جی۔ اور آزاد امیدوار جو ہیں جی وہ گور نواز صاحب ہیں۔ گور نواز صاحب کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے، جس طریقے سے حامد شاہ صاحب اور پیر صابر شاہ صاحب کے کریڈٹ پہ بہت کچھ ہے، اسی طریقے سے گور نواز صاحب کے کریڈٹ پر بھی بہت کچھ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابقہ جو منسٹر رہے ہیں بابر نواز خان صاحب، یہ گور نواز صاحب ان کے چچا ہیں، اور جو بابر نواز خان صاحب ہیں ان کے والد شہید اختر نواز خان صاحب، ان کی بھی بڑا اثر و رسوخ رہا ہے۔ تو خواتین و حضرات، آج دیکھیں گے کہ ان تمام حضرات نے جو ہے وہ کتنا کام کیا ہے اس علاقے میں، اور عوام کتنی مطمئن ہے ان سے، اور آنے والے الیکشن میں زیادہ تر رجحان اور فوکس کس کینڈیڈیٹ کی طرف ہے۔ چلیے، کسی بھی علاقے میں جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں بڑی کنٹریبیوشن رکھتے ہیں، تو میرے ساتھ بھی یہ 2 بزرگ ہیں، تو چلیں اسی بہانے سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے سندا؟ خیر خیریت جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ طبیعت اچھی سندی؟ شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میں کیا کرنے واسطے آئے ہو؟ کیا پہ کرتے ہو؟ جی سودا کے تھے۔ اچھا کرنے سے آئے ہیں جی، بس یہ سودا کرنے سے آئے ہیں جی۔ اچھا، میں لوگ آختے ہیں خرباڑا، پپلالا، غازی سارے ترقیاتی کام ہوئے دن ادھر، ہوئے دن لوگ کچھ بھی نہیں جی، کوڑے کوڑے جی، نہ کرو، نہ کتے پانی ہے، نہ کتے راہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کاج ہے جی، بس
अच्छा हाँ जी ओए ओए हाँ ओए जी नहीं अस्पताल भी आखतन बन गए हैं, रोडां भी ठीक हो गई हैं, कार पानी भी आंदा है, नलके भी लगे थे, सारा कुछ ठीक चलता पिया। नहीं निशान नहीं है ये हाँ जी अस्पताल ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੁੱਲਾ ਲਗਾ ਬੜਾ करोड़ों रुपए दे फंड आ गए तो सब अस्पतालों दे नाम पे ਅਗਲੇ ਜੇ ਵੇ ਚਲੇ ਗਏ वो खा पी गए ना जी वो अच्छा। खाते नहीं खा जुल देन हाँ जी खा जुल देन वही अल्लाह जी हाँ है जी। ये क्यों सी फिर जी ये? बस अल्लाह ही वोट करे। किसन देसो फिर वोट के वोट नहीं देसो ना जी फिर किसी ने देनी ही नहीं छोड़ो के कर सा वोट दे के अल्लाह हाँ वो काम नहीं करे वोटर में क्या फायदा होया ए शुरू तो किसा वोट पे देते आते हो पे शुरू से कभी एक पार्टी कभी दूसरी पार्टी उस वेले आखते हैं जी असि ये काम भी कर सा ये भी कर सा अल्लाह ने वोट कहने के लिए फिर पैसा सेंडते ही नहीं छू मंतर। हाँ जी फिर नहीं है सारा कुछ ठीक है, हर जगह साफ सुथराई है, सारा कुछ ठीक है। यार जी मंडी में हालात तो कुछ इस तरह है ना कि सही इंतजामिया पूछने वाला कोई नहीं है। अच्छा आप तो माशाल्लाह आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रहे हैं तो आप फिर है, लेकिन लोग वो नहीं है ना। अच्छा। मुतमईन नहीं, क्योंकि मुतमईन इसलिए नहीं है ना कि इंतजामिया वाला कोई इस सही इलाके काम का नहीं है। इस इलाके का बुनियादी मसला क्या है? इस इलाके का ये देखो, ये जितना ये गंद पड़े इधर मंडी में, अच्छा सिर्फ गंद मसला है। हाँ गंद का मसला है ना, बहुत गंद का मसला है। इंतजामिया क्या वाले तो ये करेंगे नहीं करते हैं, इनके लिए कोई नालियां बढ़ाएं, कोई सीधा अच्छा। इंतजामिया इधर कोई फिर सकता है इधर नहीं तो दरगाह में इतने अरसे तक किसी अपने नुमाइंदे को आपने नहीं कहा? यार बताते हैं, वो आ जाते हैं, दफा ट्रैक्टर लगा लेते हैं, नाली बना लेते हैं। वोट किसको दे रहे हैं आप? वोट नून को देंगे। इस इलाके का सारा तो बड़ा मसला क्या है जी? ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜੁਲਦੀ ਏ ਅੱਲਾ। ਇਮਲਟ ਵੇ अच्छा इमलोट मुतासरीन ने ਮਤਾਸੀ तरबेला ਦਾ डैम ਡੈਮ ਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਓਹੋ। ਦੁਆ ਗੈਸ ਹੈ अच्छा ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੈਸ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਕਿਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਦਫਾ ਹਰ ਦਫਾ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤੇ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਲੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਆ ਜਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਹੀ ਅੱਲਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਖੜੀ ਗੰਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਖਾਲੋ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? बिजली नहीं है जी, रोड भी सही नहीं है, कारोबार नहीं, अच्छा कारोबार नहीं ਤੇ वो गैस बिल्कुल नहीं है। अच्छा गैस नहीं इस इलाके का सारा तो बड़ा मसला क्या है? बस ये तो लोग खुश हो, आटा सस्ता है, खाने पीने में बस बस और आटे कोई- ते जोर देते हैं नहीं आटे से जोर देते हैं नहीं। ये हाल है ठीक है जी, खैर है, खैरियत है खैर है जी, अच्छा शुक्र ये है। बताइए रेट लिस्ट पे आप लोग अमल करते हैं? बिल्कुल करेगा जी। पक्की बात है बिल्कुल जी। इसको चेक करने के लिए कौन आता है? ये बहुत लोग आते हैं ना जी, मजिस्ट्रेट भी आते हैं ना, और लोग भी आते हैं ना बहुत। अच्छा हाँ जी, मजिस्ट्रेट साहब आते हैं बिल्कुल आते हैं ना, अच्छा और इस रेट लिस्ट पे आप मतलब ये बिल्कुल देते हैं? इस पर भेजेगा। तो मैं अभी किसी से पूछूं तो अगर उसने बिल्कुल कहा पूछ। कि इस रेट से ज्यादा दिया तो फिर क्या करेंगे? बस उसको जुर्माना लगाओ ना, उसको जुर्माना लगा बिल्कुल दें लगाओ। ये रेट लिस्ट पे दे रहे हैं ये लोग? ये तो दिखा रहे हैं हमको, मगर अच्छा। कुछ फर्क होता है, लाजम फर्क होता है लाजम होता है, क्योंकि हाँ। के बराबर तो नहीं चलते हैं लोग, अच्छा मतलब इस रेट लिस्ट पे नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे। किधर भी जा रहे हैं? टमाटर देखो, अच्छा टमाटर टमाटर 100 रुपए उधर हरिपुर में, इधर 130 में मिल रहा है। टमाटर का रेट नहीं लिखे अच्छा अच्छा टमाटर 140 तंगी वाला है ना, ये तंगी सवाल तो अच्छा तंगी वाला है तो आपको कौन सा चाहिए? हमको तो काबली चाहिए, काबली वाला थोड़ा अच्छा सस्ता है। अच्छा अच्छा वो ठीक है ठीक है ठीक है तो इस रेट लिस्ट को यानी तकरीबन ठीक है देखें इसमें तकरीबन अंदाजा नुमाइंदा डिप्टी कमिश्नर हरिपुर भी है, नुमाइंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, नायब सदर मार्केट कमेटी हरिपुर भी है, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी हरिपुर फिर है, गाजी का कोई नहीं है इसमें कादी का नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब गाजी यानी यहाँ पे नादिम है ना हमारे कासम अच्छा। शाह साहब का, किसी का भी नहीं है, न TMO का भी। वही टीएमओ का नहीं है और जो नाजम साहब हैं उनका भी इसके ऊपर नहीं है तो हरिपुर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर बैठा हुआ जो नुमाइंदा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको क्या पता है? ठीक। ये तो जो लोकल हमारे तहसील नाज़म है उनके साइन होने चाहिए थे, TMO के होने चाहिए। टीएमओ साहब के होने चाहिए थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के होने चाहिए थे, सही है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं है, और ये फर्क है जी, फर्क फर्क लाजम है, है कुछ ना कुछ फर्क फर्क है इसमें। है इस इलाके ना सारा तो बड़ा मसला क्या है जी? बस ये महंगाई मसला और गई है, महंगाई ज्यादा है महंगाई ज्यादा है बहुत ज्यादा। बाकी सारा ठीक जुलता है बाकी तो सही है तकरीबन, बस अस्पताल महंगाई है का ही मोन रौला डॉक्टर है मोन है। वो एक्सरे दूर दी मशीन गल है, है बात दी है। अच्छा, वो वो पहले बात दी ये है। दे होए, पहले पूरा होए ना बुनियादी जरूरतें होनी बुनियादी जरूरतें तो पूरियां होन।
ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं होंगे मेन मसला जड़ा है ना जी ਹਾਂ ਹਾਂ महंगाई ने ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ और बंदे परेशान ने ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਫਿਰ उसे शेख हो या कोई और हो सारे को खुश किस करो अच्छा मतलब चीजें महंगियां बहुत ज्यादा हर जाइत है अच्छा 200 रुपए किलो प्याज कौन खावे कौन खावे 200 रुपए किलो 200 रुपए ते ये महंगाई क्यों है जी ये अल्लाह जाने जी क्यों है खुदा सही हो सी असा तो नहीं सही नहीं कोई ते और इस इलाके हुकूमत की वजह तो महंगाई है और क्या महंगाई है इस इलाके में कोई और मसला भी है कि नहीं जान मसले न जी केड़े जान केड़े मसले। न तुसा हर मसला हर गरीब मसला। आवाम ता रोटी खाने भी रह वही गई अल्लाह सेहत का निजाम अस्पताल ठीक कोई हो? अस्पताल नहीं जी अस्पताल उस वास्ते जिसको पैसे न। वोट फिर इस बारी थोड़ा जा सोच समझ के सोचता जी इस बारी बहुत सोचता हाँ आगे नहीं सोचने हैं पर सोचता जो तहसील गाजी है इसका सबसे बड़ा मसला आपके नजदीक आपकी सोच में क्या है तो बस आजकल तो हालात ऐसे आए हैं कि बेरार की महंगाई है आए सिफारिश है बस सिफारिश है सिफारिश है लेकिन गरीब सिफारिश आदमी किस बस चीज में सिफारिश का ज्यादा में सिफारिश है जिसका ज्यादा होगा तो बस काम होता है जिसके पास पैसा ना क्या नहीं कायदे आज़म साहब तो फोत हो गए बहुत हो गए तो चलता तो है ना परेशानी आपने देखी है परेशानी किसे कहते हैं वाह सरीकोट से आए हैं माशाल्लाह सरीकोट तो माशाल्लाह छोटा पेरिस है जी सर बिल्कुल सर हर चीज मुयस्सर है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हाजिर सुप्रीम कोर्ट के जज वहाँ से हैं जी सर एक माशाल्लाह सेनेटर वहाँ से हैं जी सर और माशाल्लाह ब्यूरोक्रेटिक तो बहुत सारी सीटें हैं वहाँ पे जी सर तो गाजी में कोई मसले हैं आपकी नज़र में नो सर नहीं है गाजी ठीक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है कोई गैस का मसला नहीं है बिजली का मसला नहीं है रोड ठीक है हेल्थ का सिस्टम ठीक है बिजली का ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर हम तो वार्ड एम्प्लॉइज हैं हमें तो कोई तकलीफ नहीं है थैंक यू सर इतना महंगाई बढ़ाई ने समझ नहीं आती बंदे पैसा गरीब बंदा कह नहीं सकता तालीम दा सेहत दा अस्पतालां दा रोडां दा गैस दा बिजली दा सारा ठीक है कुछ भी ठीक नहीं है मान बिल भी पे आंदे वही फिर अस्पताल जो अस्पताल भी कोई इंतजाम नहीं इलाज है ही कोई नहीं ते वोट किसे देंदे बीमार रहे हो हाँ, तुसां बीमार हाँ वकार साहब माशाल्लाह मैंने देखा है यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं यूं लगता है जैसे जन्नत में रह रहे हैं हाँ वो इसलिए खुश है जी जो उम्मीदें थी जो आसरे थे जो सोच थी जो ख्यालात थे अब ये समझ गए हैं लोग कि ये क़यामत तक पूरे नहीं होने अच्छा। तो रोने से फायदा है नहीं तो बस हंस खेल के अपना टाइम गुजारो कब्र में सबसे जाएंगे बड़ा मसला इस इलाके का क्या है आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला इस इलाके का तालीम है जी अल्लाह ठीक उन गाजी दी भी ठीक उन। अल्हम्दुलिल्लाह बिजली पानी सारा कुछ है वे ओ जी वो तो तुसा पता है जो कुछ है थे तुसा भी नजर पे आना है असा भी पे आना है सारा ही रोला है रोला है हाँ जी नहीं थे तुसा ने ते माशाल्लाह बड़े अमीर कबीर लोग उन सारे अमीर तो हैं जी बड़े अमीरा से ही ना गरीब वास्ते तो कोई नहीं वोट किसा दे सो वोट किसे है नहीं देने हाँ जी क्यों वो नहीं जी कोई बंदा ही नहीं सही कैसा वोट दे वहाँ पे आके अपना मुफाद हासिल करके ते चले वे ਕਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਮ ਹੈ ਯਾਰ तहसील नाजम साहब बैठे कौन हैं ना, बैठे हैं? ऑफिस से जी उन्होंने किधर है? कासिम शाह साहब उन्होंने नाम ਤੁਸੀਂ ਟੀਐਮਓ ਜਲੋ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਮ ਸ਼ਾਹ ਬਟੂੰਦੇ टीएमओ दी ड्यूटी इस इलाके दी खिदमत करनी है। ਕਿਧਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਧਰ ਕਚਰਾ अच्छा, इलाका एक मुझे कचरा स्ट्रीट- नहीं एक कचरा के पाए कौन चासी इलाका मजिस्ट्रेट थे है ना जी वो भी नहीं ओ यार कौन दफ्तर टाइम तो होता है अच्छा। मैं तू मैं ना कल सुबह 8 बजे मैं कोई दफ्तर खुले अच्छा कोई दफ्तर खुले 8 बजे 8 बजे 9 सी खुलते हैं क्यों? टाइमिंग क्या है? सियाला उसी डजंट मैटर अच्छा साला ये गर्मी ये ना होना चाहिए टाइम है ओके टाइम है नहीं टाइम है बिल्कुल फिर से साल गर्मी दे के तरह साल नहीं कहते किंदन गर्मियां भी किंदन गर्मियां भी कहते हैं हाँ जी कोई बाथरूम फैसिलिटी है कोई नहीं कोई पानी का सिस्टम है कोई नहीं ते लेडीज भी आते हैं ना जी जी और किसी लेडीज से बाथरूम में जाना होवे मर्द जाना होवे सही क्या कर सकते तहसील नाजम तहसील या फिर तुसी सवाल मैं कर दियो तुसा छेड़ रहे हैं ना सर सर माना मैं छेड़ो तहसील नाज़म अच्छा। कौन है तहसील नाजम तुसा नहीं पता सर तहसील
ਉਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਇਧਰੋਂ, ਦੇਖੋ ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇ। ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਗੋਂ को पैसे कौन कहते हैं? तहसील नाज़िम कहता है। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ फिर किसकी रिस्पांसिबिलिटी है? ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। Okay. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ। नाज़िम साहब जो के टोन मैं नाल टोनी के मैं टोन के मैं कंप्लेंट करना। ख्वातीन और हज़रात, आपने हालात देखे वहाँ पर मंडी में, और जो गिले शिकवे थे वो अपनी जगह पर थे। हमने कोशिश की TMO साहब से लेकिन नहीं मुलाकात हो सकी। तो चूँकि हमारी लिस्ट में तहसील नाज़िम जनाब साहबज़ादा कासिम शाह साहब थे ही थे, तो खुशबख्ती है हमारी कि उनसे मुलाकात होगी। लोगों का ज़्यादातर गिला यही था कि तहसील नाज़िम साहब जो हैं उनसे मुलाकात नहीं होती, टाइम नहीं मिलता उनसे। हकीकत में अगर आपको बताऊं तो मैं जब भी आया हूं तो हमेशा उनको मैंने अपनी सीट पे ही देखा है और जमघटा देखा है लोगों का। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसी तनाजुर में जो है मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा तहसील नाज़िम जनाब कासिम शाह साहब से। मंडी में जो स्पेशली एक सबसे बड़ा मसला ये है कि कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों का क्राउड है, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन। लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोगों का गिला ये था कि वहाँ पे जी जो हमसे ठेकेदार जिस मद में पैसे ले लेते हैं उस जगह के, ज़मीन के, उसके अगेंस्ट कोई आसाइश नहीं है, किसी किस्म की भी नहीं है। सबसे पहले तो हमारी बदकिस्मती है कि ये जगह हमारी नहीं है, वाबड़े की है। और वाबड़े की जगह पे हमने कितनी मरतबा हमने कोशिश की है कि हम यहाँ पे बाथरूम्स बनाएं। हमने नाली की बात की है, हमने बाकायदा प्लान किया है हमारे TOI TMO ने जाके कि हम एक नाला उस तरफ से बनाएं जो पानी वहाँ से गुजरे। लेकिन वाबड़े को अभी भी मैं आपको लेटर्स अभी भी वो रिकॉर्ड में हैं, और मेरी बात भी हुई है, कहते जी करते हैं, लेकिन इतना अरसा हो गया, 2 साल हमें होने को हैं। वाबड़ा जनाब उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। हमने बाथरूम शुरू किए, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पे नहीं कर सकते। हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे पास यहाँ गाजी पे जगह नहीं है। एक तरफ तो गाजी भरोता ने वो जितनी जगह थी कैनाल में आ गई, दूसरी तरफ आपको दरिया की वो हो गई। तो गाजी में जो छोटी सी जो जगह हैं वो सिर्फ वाबड़ा की हैं। हम जो यहाँ पे बैठे हैं ये भी वाबड़ा का ऑफिस है। पहली बात तो ये है कि उनके साथ हमारी जो टेक्निकल इशू में जो आ रहा है वो ये है कि हम कोई भी डेवलपमेंटल, आप वहाँ का तो छोड़े, मैं ये मछली चौक में जो मेन चौक है यहाँ पे जगह भी है, हमने वहाँ पे बाथरूम्स का हमने कहा कि बाथरूम बनाते हैं। जनाब उन्होंने कहा जी नहीं आप नहीं बना सकते हैं, कि हम परमिशन लेंगे और परमिशन चेयरमैन देगा, तो वो ना होने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जब से हम आए हैं हमारी बदकिस्मती है कि हमें डेवलपमेंटल साइड पे 1 रुपए का फंड भी अभी तक नहीं दिया। यानी सबसे बड़ी बात, हमारे जितने चेयरमैन हैं यहाँ पे, VC के चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, हमें एक आने का फंड गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है। सही। लेकिन हमारे ये नोटिस में है सारी चीज़ें, और जो हमारी इस्तिताअत है उसके तहत काम कर रहे हैं। एक और पॉइंट है शाह साहब के तजावजात और उसके साथ ही T5 की भर्तियों के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा तपे हुए हैं। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, उसमें तहसील नाज़िम का क्या किरदार रहा है? क्या लीगली कोई ऐसा पॉइंट बनता था कि उसमें आप यहाँ के जो मुतासरीन या यहाँ के जो लोकल रिहायशी हैं उनको ज़्यादा आप इंगेज करते, वो ज़्यादा वहाँ पर सेटल डाउन होते, लेकिन नहीं हुए। हमारे इलाके का हक बनता है, आ जाते हैं लाहौर से, आ जाते हैं और इलाकों से, कराची से आ जाते हैं, हमारे लोगों को नज़रअंदाज करते हैं। टेस्ट इंटरव्यू सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन करते वो हैं जो उनकी अपनी मर्जी हो। लिस्टें आती हैं वो, और वाबड़ा तो आपको पता है कि वो एक बेलगाम घोड़ा है। सही। वो किसी की उसमें वो आता नहीं है जी। तो T5 हालांकि हमने अभी तक बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है, इलाके के लोग यानी काफ़ी तैयार हैं कि हम इनको बाहर आने इनको न दें। अगर हम थोड़ा सा वो करें तो ये बाहर ही नहीं निकल सकते, लेकिन हमने कहा नहीं, हम लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेते। सही। अभी भी PD साहब से उनसे की कहते जी करते हैं, इनकार नहीं करते हैं। सही। करते हैं जितनी फाइलें पड़ी हैं, मेरे ख्याल कुछ अर्सा तो बंद थी भर्तियाँ। सही। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहे हैं तो वो ठेकेदार अपने लोगों को भर्ती कर लेते हैं। सही। तजावजात जी, तजावजात के बारे में तो लगे हुए हैं हमारे TMA का अमला भी, AC साहब, DC साहब, ये सारे हम जॉइंट इनका वो शुरू है। जहाँ पे तजावजात हैं तो इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको तजावजात को हटाएंगे। और एक दूसरा रास्तों का
रस्तों का जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो रास्ते हैं तो उनके भी हमारी मीटिंग हो गई है। वो भी जितने भी हमारे तहसील में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के रास्ते हैं तो उनके बारे में इंशाल्लाह हमारा ये डिसीजन हो चुका है कि बहुत जल्द उस पर काम शुरू करेंगे। रास्तों में demarcation एक की। क्वेश्चन जल्दी से करता हूँ सर कि जो डंपर्स का जो वापडा का रास्ता है वो क्या उनका वो नहर वाला रास्ता है या यही जो जीटी रोड है ये रास्ता है, और अगर वापडा का वो रास्ता है तो डंपर वहाँ पे क्यों नहीं जाता और आम शहरी उस जगह से ट्रैवल क्यों नहीं कर सकता? ये जितने भी दोनों तरफ से रोड्स हैं और जितने पुल हैं ये कम्युनिटी के लिए बनाए गए हैं। कम्युनिटी के लोग यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी। इन्होंने आके यहाँ पे जनाब आके तो बंद कर दिए हैं, किसी को नहीं छोड़ते, एक साइड से छूटते हैं। दूसरी बात ये है कि बदकिस्मती की बात अभी भी एक वाकया यहाँ पे हुआ है एमलेट में, बच्चा आ गया। तो इस सारे एरिया पे जंगले थे, सही फेंस थी पूरे यहाँ पे। ये बड़ी ज़्यादती की बात है कि उन्होंने जनाब वो फेंस भी चली गई, गायब हो गई, कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो डंपर हैं इनको तो जो तरबेला रोड है वो यूज़ करते हैं। मैं आपको बताऊँ पाई के पास जहाँ पे वो ऊपर चढ़ते हैं कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं। सही। और वहाँ आप जाके देखें ना जी, ऐसी जो मिट्टी वहाँ जो गर्दो गुबार वहाँ पे उड़ता है। तो मैं तो आज भी ऐसी साहबा को मैंने कहा आप बंदों को भेजें कि वहाँ जो ठेकेदार है कम से कम वहाँ पे वो करे, पानी वहाँ पे पानी का छिड़काव करे। और वो एकदम वहाँ पे रोड पे आते हैं तो मैंने कहा जो इंडस्ट्रियल एरिया में अंदर से एक रोड है तो उनको वो इस्तेमाल करने की वो इजाज़त दें। तो ये तो जो बेसिक जो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है गाजी भरोता इसका, उसमें ये चीज़ है कि ये जो रास्ते हैं ये ओपन होंगे कम्युनिटी के लिए। सही। तो अजीब बात है वो बंद किए हैं, ये ज़्यादती है। ख्वातीन हज़रात अभी वापस दोबारा मंडी की तरफ जाएंगे। जो एक ओपिनियन था वो हमने लिया और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन था। जो इख्तियारात हैं, जो जिस किस्म के फंड्स हैं उसी हिसाब से तरक्याती काम हो सकते हैं। चलिए दोबारा चलते हैं जी मंडी। कीमतें आसमान पे बातें कर रही हैं कि दिन में घर में गुजारा फिर मुश्किल हो जाता है। तो बच्चे जिनके तो 5-6 बच्चे हैं उनके लिए तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। गैस आता है नहीं है और प्रेशर भी इनका कम है गैस का, और ये जो है जो बिजली का बिल भी है ये भी ज़्यादा आते हैं, गैस का बिल भी इतने ज़्यादा आते हैं, जबकि गैस जो पीछे से आ नहीं रही ज़रा भी, और बिल जो है इनके जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वोट तो हम अभी देख के देंगे कि कैसा चल रहा है, को आगे मतलब कैसी हमारी महंगाई जिस लिहाज से चलेगी उसी लिहाज से हम वोट करेंगे। गाजी रजिया इलाका है या इसने विच कोई मसले मसाइल है? अमन गाली इतना रजिया तो नहीं है गाली करने का। अल्लाह अगर रजिया होया तो आपने रोड का ही हाल देख के ना ये रहे तो खालो लोग घेन के तो गाली हो शर्मा रोड तक सारा पानी ही पानी पे है। अच्छा रोड का ही हाल है, भजिया टोटिया रोड है। लोग बेचारे क्या करो। एक वजीर आजम इस टाइम बैठे हैं मुल्क जी। हाँ काकोड़ साहब जी। हाँ जी जी। वो तो खाली आकोड़ साहब है जी, काकोड़ साहब तो नहीं आकोड़ साहब। अल्लाह ही ना रहम करे। खड़ी गंगर इचकड़े पे पला लेने हो खैर बाड़ी। अच्छा बांडी दियो ते मैं दसो कि ये गाजी ने बांडी ने कोई मसले हैं वन या बस ठीक है सारा कुछ? ना जी मसले तो है ना, के बन रान है, पानिया ने मसले, स्कूला ने मसले। अच्छा ते मसले एमपीए साहब ने नाजम साहब ने किसी ने भी मसला नहीं हल कीते? बस ये तड़े उन्होंने पूछने ने आ गए, वैसे तो कोई भी नहीं होन। हाँ अच्छा जी। वोट किसन देसो? वोट ऑन देख सर, देख के सोच समझ जी, सोच समझ के दे। असन इलाके जड़े इमलट गाजी खालो ए बाकी खड़ी गंगर ना जड़ा भी एरिया इसमें कोई मसले है वन या नहीं? मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं जी। हाय अल्लाह ए केड़े केड़े जी? ए मसले मसाइल बिजली देन, गैस देन और पानी देन। इधर कपनियां आई जने बाहर लोग आन के भर्ती होन, साढ़े किराए दे कोई नहीं होन। कई लोग दिहाड़ लाने जुलते ने आड़े तो वापस आ रहे ने। दिहाड़ लगती है तो ठीक है, नहीं लगे तो वापस खर्चे तो उन्होंने आई गए। अच्छा मैं ये दसो कि ज्यादातर तुसी समझदे हो कि तुसां ने जिन्हां लोकां वोट दित्ती है जी जी उन्होंने हक अदा कीते? यार कोई थोड़ा बहुत हक अदा कीते, ज्यादा हक नहीं अदा कीते ने। वो जड़ा टेंपरेचर ही जड़ा होंदा है, बाकी हक शा कोई भी अदा नहीं। हाय अल्लाह ते इस बारी किसा इंशाल्लाह वोट ते इस बारी अखियां खोल के आने कट के देसो या 500 इस तरीके? नहीं जी, अखियां खोल के देसा इंशाल्लाह। वोट इस बारी ते बहुत मजे दी वोट हो सी।